Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video solution series Road to Excel RI, today we are going to take a look at ZAT 2023. Section is decision making, not VRC this time. Set number 4. Set number 1, 2, 3 already done and uploaded in the playlist with the same name Road to Excel RI. Please check those out along with the other video solutions that I've posted. And I hope that your prep is going on really well, really strong. Let's see what this set was about. I've labeled the set as Dhan's tea stall. You will understand what the story is and we'll take a look at the question shortly. Meanwhile, nobody accused me of tampering with the original quote here. This was the actual quote जो चाय पे चर्चा पे William Shakespeare once said. It was later on that he got the epiphany to change it to be or not to be. चलो आगे चलते हैं. Let's see what the set is about. Okay, so taking a look at the set right now, बहुत अच्छा set है, very aspirational story actually. We are given that there is a 15-year-old girl by the name of Dhan. ठीक है. She lives with her mother. Unfortunately, she does not have a father, and they are quite poor. The mother is working intermittently as a daily wager in some factory to make ends meet. ठीक है. Now, Dhan is also not somebody who is taking it easy in life. She lives a very pretty demanding day. Her life is hectic. What is given to us? Properly एक schedule दिया है हमें उसका. We are given that 2 hours. I am assuming that this is in the morning because there is breakfast mentioned. She runs some household errands like getting water. या फिर चलो ठीक है, इतना डिटेल में ना लिखते हुए let us label it as only errands. ठीक है, इसके morning के 2 hours go into errands. Other than that, what does she do? She also prepares supper for her family. Okay, चलो. And upon the insistence of her mother, she is also a dedicated student. She also attends an evening school which an NGO operates. ठीक है, ठीक है, चलो. तो इस वजह से दिखता है कि यार करीब करीब तो प्रॉपरली पूरा एक दिन चले ही जाता होगा. इवन इफ वन स्टार्ट्स देयर डे वेरी अर्ली इन मॉर्निंग, तो भी टाइड अप थ्रू आउट द डे. एंड इन साथ साथ में धन हैज एन एस्पायरेशन कि यार मुझे ऐसी जिंदगी लाइफ लॉन्ग नहीं जीना है. आई वांट टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ टू माय मदर. Very admirable and take family out of poverty. Nothing wrong in there. तो अब आता है एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने. धन ने ऑब्जर्व किया है कि द स्लम वेयर शी लिव्स, वहां पर एक टी स्टॉल है. ठीक है, जहां पे टी और कुछ एसोसिएटेड स्नैक्स मिलते हैं. बहुत ही रफ हिंदी में मैं बोलूंगा चाय की टपरी. ठीक है, बट ये बहुत सक्सेसफुल स्टॉल है बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस एंड ऑल्सो लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स. मतलब इतना बड़ा शायद वो स्लम है इतने मेजर सिटी में, बट अपेरेंटली ज्यादा चाय की दुकानें नहीं है शायद वहां पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट द ओनर ऑफ दैट प्लेस इज मेकिंग अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, ₹800 प्रॉफिट पर डे, नेट प्रॉफिट, विच इज वेरी एडमायरेबल. एंड व्हाट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इज दैट दिस एग्जिस्टिंग बिजनेस कैनॉट केटर टू ऑल द कस्टमर्स. सो बट नेचुरल ऐसा होता होगा कि शायद 100 लोगों की भीड़ जमा होती है, बट शायद 80 लोगों को ही चाय मिलती है, 20 लोग गो अवे डिजेक्टेड बिकॉज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू सर्व. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे धन स्पॉट्स अ मार्केट अपॉर्चुनिटी कि यार मैं ये 20-30 लोगों तो सर्व करना स्टार्ट करूं, मे बी आई विल बी एबल टू मेक मनी, मे बी दैट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई फैमिलीज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. चलो जी, फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट धन सीम्स टू बी अ प्रीटी स्मार्ट गर्ल, not somebody बेवकूफ, not somebody taking it easy in life. चलो देखते हैं. नाउ व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अस इज, पहला क्वेश्चन, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट विल इंक्रीज धन के चांसेस ऑफ रियलाइजिंग हर ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर. ठीक है जी, ऑलराइट. So what is given to us is कि यार धन already is a pretty busy person. She is assisting her mother when it comes to preparing food, because the mother goes to work somewhere. She also has to attend her school. She also run household errands. तो ऐसे इसमें अभी अगर एक नया वेंचर शुरू करना है एंड इफ इट वांट्स टू सक्सीड प्रॉपरली, खास करके फूड बिजनेस है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन व्हेन इट कम्स टू टाइम. ठीक है, तो टाइम निकालेंगे कहां से? एवरी पर्सन हैज लिटरली ओनली 24 आवर्स अ डे. रात के टाइम में तो इस चीज पे काम कर नहीं सकते. चाय की स्टॉल तो दिन में ही चलेगी. सो वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, वेरी लिमिटेड विंडो शी हैज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब कहीं ना कहीं टाइम तो फ्री अप करना पड़ेगा उसे. सो व्हाट कैन शी डू? Option A is given to us, hire someone at ₹10 per day to fetch water for the household. Now upon first reading this seems like okay. ठीक है कि भाई थोड़ा सा काम आपने आउटसोर्स कर दिया फॉर सीमिंगली रीजनेबल कॉस्ट. दिन का 10 रुपए मतलब महीने का ₹300 समथिंग निकलेगा, तो उससे आपका टाइम फ्री अप हो रहा है.
बट वेन यू थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर में, इट कम्स टू लाइक दैट कितना देर लग रहा है पानी को हमें नहीं पता, ठीक है. वी आर गिवन दैट इट रिक्वायर्स 2 hours फॉर वाटर, ब्रेकफास्ट एंड लंच, ठीक है. ये 3 एक्टिविटीज को 2 घंटे लग रहे हैं मिलाकर. नाउ आउट ऑफ दिस फेचिंग वाटर माइट बी टेक्स 15 minutes, मे बी इट टेक्स 40 minutes, हु नोस, पता नहीं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं दिस ऑप्शन इज अ लिटिल बिट वीक. कि अगर 1 घंटा भी अगर लग रहा है पानी लाने में, तो इफ शी पेस समबडी तो 1 ही घंटा फ्री हो रहा है ना, रेस्ट ऑफ द डे स्टिल टाइड अप. 1 घंटे में थोड़ी वेंचर चलेगा, राइट. तो ऑप्शन ए very very strongly inclined to reject it. Maybe we will revisit it if the rest of the option turn out to be even worse. B, actually B and C are in the same pool and both need to be rejected because they are asking कि मदर के ऊपर काम ढकल दो. Okay, अगर ढकेल भी दिया, even if you ask mother to fetch water for the household, this is similar to option A. The only difference being कि mother will not ask money from Dhan to do that. But other than that, very limited amount of time getting freed up on Dhan's end. Same thing goes for asking mother to pack breakfast and lunch. Maybe at max 1 hour, 1.5 hour getting freed up because of it. अगर वो ये दोनों तीनों काम आउटसोर्स कर देती है मदर को या किसी और को, even then only 2 hours in the day are getting freed up. Are those 2 hours fair enough, sufficient enough to help then start her venture and give it sufficient amount of time? I don't think so. And anyway, there is no option which tells you कि पूरे 2 घंटे फ्री अप हो जाएंगे. It's either B or either C. दोनों भी नहीं, चलो बाय बाय, ठीक है. ऑप्शन डी, रिक्वेस्ट मदर टू डू व्हाट, टू स्टॉप वर्किंग एंड बी अ पार्टनर इन द न्यू वेंचर. फर्स्ट रीडिंग पे आई डिड नॉट लाइक दिस, बट प्लीज कीप इन माइंड फर्स्ट रीडिंग पे. क्यों? बिकॉज आई हैव अ फेयरली कंजर्वेटिव माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू सिचुएशन लाइक दिस. आई एम समबडी कि अगर आपको खुद का कुछ नया करना है विच मे और मे नॉट सक्सीड, बट डोंट लेट गो ऑफ द सॉलिड थिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन हैंड. इंग्लिश में हमारे एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है. तो आस्किंग मदर टू लीव द जॉब इज लाइक आस्किंग द बर्ड इन हैंड टू चल फ्लाई अवे. आई हैव 2 birds hiding in the bush and I'll catch them. Will you be able to? God knows, ठीक है. So upon first reading I actually did not like, because they are already in a precarious financial situation and then asking mom to not work at all is like कि बेटा आपका वेंचर अगर नहीं चला तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है. फिर भी देखते हैं. ऑप्शन ई, स्टॉप गोइंग टू ब्रिज स्कूल. ना जी ना, बिल्कुल नहीं. Please keep in mind, Dhan is, no matter how smart or aspirational she might be, she is still a teenager, and no student, no child should be asked to leave school. Absolutely not on the table. School is needed for literacy, for further education, for all kinds of life up ahead. So बचता क्या है आपके पास में? It's like सर्वगुण संपन्न कोई ऑप्शन नहीं है. हम थोड़ा सा रिस्की बनकर ऑप्शन डी पे ही जाएंगे. बिकॉज ओनली व्हेन शी आस्क्स हर मदर, यार प्लीज आप काम करना बंद करो, तभी जाके तो जो टाइम जाता है मॉम के लिए ब्रेकफास्ट लंच करने में वो बचेगा. इफ मॉम इज लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड, मे बी धन गेट्स फ्रीड अप, शी ओनली हैज टू अटेंड स्कूल एंड रेस्ट ऑफ द टाइम शी कैन डेडिकेट टू दिस वेंचर ऑफ हर्स, very likely. And if mom also ends up having some spare time on her hands, so mom will assist Dhan in taking the thing really seriously, doing their best, putting their best foot forward. So on those counts, I'll cut this not okay part out and this is okay now. Comparatively, option A में, even if there is a benefit, it's a very very infinitesimal one. ठीक है? So I hope that you got this, and let's see what the second question holds. If you have not hit the like, share and subscribe button, please take a moment to do that. Please hit those buttons. Serves as a great encouragement to someone like me. Let's see what the question 2 is. Also, please pardon for the poor layout of this question. I tried a lot of different variations, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बैठ पाया. So if you are watching this on your mobile phone, it is possible that such a lot of cramping in text in a small place might have put strain on your eyes. लैपटॉप पे शायद इट इज डूएबल, बट येस एस्थेटिक आउटपुट इवन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, बट क्या करें, ठीक है, सही लो प्लीज थोड़ा सा. ओके, क्वेश्चन 2. विद इन 2 years of establishment, Dhan ka TCS is doing amazingly well. She has beat her rival, the OG guy who was running that tea stall in the slum, but also earned goodwill for the quality and taste of product. क्या बात है जी, 2 साल में 17-year-old person इतना अच्छा काम चला लिया, बहुत बढ़िया. It has become famous within the slum. There is also brand value attached to it now. Dhan, क्या बात है. Okay, now Dhan aspires to do what?
शी सेज कि यार चलो हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी है, लेट्स रैम्प अप द कैपेसिटी फ्रॉम 100 kg per day to 1000 kg, 10x jump, which is not a small amount. 10x is massive, it's massive. It's not going from 100 to 150, it's 100 to 1000, and at the same time she wants to maintain quality. Big time, big time, big time, not easy to do that. तो देखो क्या सोच रही है फिर धन, देखेंगे हम। तो धन के ऊपर में अब है कुछ कुछ उसके गोल्स, उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है that she wants to do it, but she doesn't have a lot of money, so she wants to put in least amount of money as possible. She also wants to exert a lot of quality control. Definitely this is a food business that we are talking about. अगर खाने में क्वालिटी नहीं, टेस्ट में और हाइजीन में, तो बात बिगड़ जाएगी. And also protect her business interest. Definitely nobody from outside should be able to come and dethrone her from her place. उसने बड़े मेहनत से ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, सो शी नीड्स टू कीप हर इंटरेस्ट, शी नीड्स टू कीप हर फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर. तो क्या कर सकते हैं हम, लेट्स सी. ऑप्शन ए, बाय एडिशनल स्पेस विद इन द स्लम एंड एस्टैब्लिश ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. डोंट यू थिंक दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी? हेवी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये. ओके, लेकिन हमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन में बोला है लीस्ट इन्वेस्टमेंट. सो while option A sounds suitable, डेफिनेटली अगर कैपेसिटी रैंप अप करना है किसी भी कंपनी को, अगर करना होता है, तो दिस इज द वे टू गो, दैट यू हैव टू एंगेज इन कैपेक्स, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अनफॉर्चुनेटली धन डज नॉट हैव दैट विंडो बिफोर हर. तो लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो बट नेचुरली एक बात तो आ जाती है दैट धन वुड नॉट बी एबल टू go ahead with option A, although it might work in the real world business world for corporate life out, but नहीं, यहाँ नहीं. ठीक है. Option B, outsource the production along with secret recipes to a mass savory production unit outside the slum. कितनी गलत बात है ये. डोंट यू थिंक दैट जो भी उसका यूएसपी है धन का, कि देर इज अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड टेस्ट टू हर फूड प्रोडक्ट्स, इफ शी पुट्स आउट हर सीक्रेट रेसिपीज, तो फिर तो गेम ओवर है ना. शी माइट एज वेल शट शॉप एंड स्टे एट होम. ओके, ऑप्शन बी इज कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम. यू आर आउटसोर्सिंग, देन व्हाट विल धन डू इफ शी आउटसोर्सेस द प्रोडक्शन along with the recipe? Sorry, bye. C, lease space in the metropolitan region. Okay, not even the slum, it's talking about in the metro city. Okay, and establish a manufacturing unit of TCS. After A, this is also very heavy investment option. ठीक है, ए तो था ही चलो हेवी इन्वेस्टमेंट वाला, बट आफ्टर ए दिस इज ऑल्सो नॉट इजी, बिकॉज लीजिंग स्पेस इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नॉट इजी एट ऑल. ओके आउट. डी, हॉरिबल ऑप्शन. स्टॉप केटरिंग टू द स्लम ड्वेलर्स एट ऑल. भाई हम तो तुम्हें नहीं देना, हम तो अभी नए लोगों को सर्व करेंगे. एब्सोल्यूट बुलशिट. ठीक है, यू नेवर लीव योर कोर क्लाइंटेल. ठीक है, कीप इन माइंड, उन्हीं लोगों ने आपको बेस बना के दिया है, आज के तारीख में वो ही आपका एक फिक्स्ड कस्टमर बेस है. सो अनलेस योर ओरिजिनल कस्टमर बेस हैज मूव्ड ऑन बाय देमसेल्व्स, या फिर आपका प्रोडक्ट हैज मूव्ड ऑन बाय इटसेल्फ एंड कैन नॉट केटर टू द ओरिजिनल क्लाइंटेल, तब तक आप ऐसे नी जर्क डिसीजंस नहीं ले सकते. दिस इज कंप्लीटली बैड, हॉरिबल, आउट. बचता क्या है, बट नेचुरली ऑप्शन ई इज वेरी स्वीट, वेरी स्मार्ट एक्चुअली, कि बेस प्रिपरेशन करके आप 100 women को दे रहे हो who work with you and they are also minor partners in the business. अब ये अभी दिया नहीं है हमें कि धन इनको कितना स्टेक देगी एंड ऑल, बट पकड़ के चलो that each woman is given 0.4-0.5% in the business, whatever. So this way she doesn't have to shell out a lot of money as salaries for this women. Maybe they get a cut of the profit which Dhan makes. And at the same time, 100 women is not a small number. She can really easily go from 100 kg to 1000 kg per day. Right now, I think Dhan by herself can handle 100 kg. ऊपर का 900 kg तो यार 100 women तो कर ही सकते हैं. ठीक है, so each of this women would be contributing a small portion, so not a lot of क्या बोलेंगे ना, load on their end as well. So all in all, a very wholesome solution to the given problem. And also वो जो 100 willing women है, they are not strangers to her. They are from the same geographical area. They are from the slum as well. So there is also an element of community trust and all at work over there. Perfect solution given धन के constraints as well as her desires.
ठीक है, तो आई होप दैट यू गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट. इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्डली एनी कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स सी व्हाट द लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट. ठीक है, नाउ इट इज गिवन टू अस दैट धन हैज अचीव्ड व्हाट शी वांटेड, कि उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा दिया भाई, एंड ऑन हर ओन टर्म्स. अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट जॉब धन, वेल डन, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू. अब क्या बात है, अब धन हैज फिगर्ड आउट, यार जो ये मेरा ब्रांड है धन धनाधन, इट इज वेल नोन विद इन द स्लम बट unknown to the world outside. So सीधी सी बात है, धन will now aspire to do what? Take it out to the world. देखते हैं. तो वही हमारा क्वेश्चन है, that धन को अब बेचने हैं खुद के प्रोडक्ट्स, लेकिन इस कोर एथोस को, कोर गोल को हम वायलेट नहीं कर सकते. एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कस्टमर्स. ठीक है, ठीक है. तो आप देख सकते हो दैट देयर इज a particular desire to sell it at lowest price. Now you apply basic business वाला mindset कि lowest price आप कब ऑफर कर सकते हो, when your input cost is the least. ठीक है, आप अगर heavy investment करोगे in let us say hiring sales executives, having a very massive marketing और sales team, cost तो आपके ऊपर जाएंगे, तो in turn वो तो pass on करना होगा कस्टमर को, तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा. बट दैट डिफीट्स द वेरी कोर डिमांड कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचना है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट ऑप्शन डू वी हैव. ऑप्शन ए, हायर अ सेलिब्रिटी जो आज के तारीख में एक बड़ा डायमंड ज्वेलरी ब्रांड के साथ काम करते हैं टू एंडोर्स दिस धन धनाधन ब्रांड. आर यू स्टूपिड? सेलिब्रिटी फ्री में काम नहीं करेगा. ठीक है, बहुत पैसे लेंगे. एंड सेकेंडली देयर इज ऑल्सो द एंगल ऑफ कि व्हाई वुड अ सेलिब्रिटी जो डायमंड जैसे पॉश बिजनेस में एंगेज होता है, व्हाई वुड दे गेट डाउन टू मार्केटिंग समथिंग लाइक चाय का स्टॉल का प्रोडक्ट? नॉट कूल. One should have dreams, one should have aspirations, I know, but इतने भी unrealistic नहीं. B, overwhelm the metropolitan residents with digital advertisement on Instagram. मार्क ज़करबर्ग फ्री में नहीं करने देगा जी आपको. ठीक है, पैसे लेते हैं ना श्री मार्क, तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना. लोएस्ट प्राइस, कॉस्ट बढ़ेगा. और ऐसा भी नहीं है कि आप माइनर एड्स चला रहे हो. यहाँ पे दिया है कि ओवरवेल्म कर दो भाई, एक एक इंसान को दिन में 5-5 बार ऐड दिखना चाहिए. वेयर विल शी गेट दिस मैसिव बजट फ्रॉम? Not working. B, out. C, engage slum dwellers commuting daily to the metropolitan region for work. And how? कि भाई आप सेल करो ये प्रोडक्ट्स, बट हाउ डू यू डू इट? यू डू इट ऑन अ कमीशन बेसिस. अमेजिंग ऑप्शन यार, अमेजिंग, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. कितना बढ़िया ऑप्शन है ये. दिस वे इट्स लाइक हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू. हाउ सो? कि there are already certain number of people moving from the slum to the metro city for work, तो उनके आने जाने में धन does not have to put in money to give them commute का पैसा and all, and they are also given the products to sell on commission basis. तो किसी को 5 बेचना है तो 5 बेचेगा, किसी को 50 बेचना है तो 50 बेचेगा, and incentives तो उस हिसाब से distributed है. तो amazing amazing, once again very good option, very good strategy to work with. Whoever came up with this solution, very smart business guy. Let's see what option D and E hold, but anyway option C is like sold out. D, E, hire a few sales executive. Once again पैसा लगेगा, पैसा नहीं है हमारे पास में लगाने के लिए. And E is even more absurd. After A, E बहुत unreasonable है कि आप high end retail stores के पास में जाओ. भाई चाय की स्टॉल के प्रोडक्ट्स बेचना है, why would she go to high end retail stores? This is like chalk and cheese जितना different है situation. So completely absurd. D and E get kicked out. We have a super solid option in the form of option C. ठीक है, तो I hope that you got all the 3 questions correct. Let me know your score in the comment section. If you like this video, please consider hitting the like, share and subscribe buttons. Thanks a lot for watching, and I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.